souls, all my beautiful kings and queens, welcome back to my channel and thank you for supporting my channel. जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखें ताकि आपको इस तरीके के ब्रेसलेट फ्री में मिले या आपको फ्री टैरो रीडिंग मिले। तो आज के जो टॉपिक है वो है, क्या आपके पास से कोई वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और अगर कोई वापस आता है तो वो कौन है जो वापस आ रही है आपके लाइफ में, और उसके साथ आपके रिलेशनशिप क्या है। तो इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई आपके लाइफ में वापस आ रही है दोबारा, और वो आपके पास से कौन वापस आ रहे हैं, और क्या उनके साथ आपकी रिलेशनशिप है, आगे क्या होने वाला है, इस रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपके आंखों के सामने आ रही होगी, तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल souls, welcome back to my channel. This reading is about, is there someone coming back to your life and that is from your past? Is there someone who is coming back in your life and they are coming from your past? What is your relationship with them and what is going to happen next? So this is the whole topic of this reading. We will quickly start this reading, but before that there are two options over here. One is heart and one is bracelet. So you need to choose one of the option, and whichever the option you are choosing, that is your reading. So we will quickly discuss about it. Before that, please subscribe my channel, like this video and write below to my video so you can win this kind of bracelet. This is a healing bracelet you can win if you support my channel for next 3 months. And also I would be, I'll be giving some giveaway for personal tarot reading. That also you can opt if you are supporting my channel. All you need to do, subscribe my channel, like my every video, and you need to comments below this video. So whenever whosoever will be doing that continuously for 3 months, you will be getting free reading and free bracelet. But you have to do it every video. Like I have to see your name on every video, and you have to subscribe this channel and also make others to subscribe this channel. If you make others to subscribe this channel and you let me know that the subscribers numbers and names and details, not numbers, names and details as a screenshot, I will be giving you something else also, some extra reading and personal reading you will be getting it. If you are giving suppose some 50 subscribers to me, then I'll be giving you reading. So you need to send their screenshot, because there are bot things are going on, so I don't want bot subscribers. I want some real subscribers. If you are giving me real subscribers taking their screenshot and sending it to me, I'll give you some free gift. So these are the option and we will quickly start this reading. तो अभी जो है मैं एक प्रेयर करूंगी और उसके बाद शुरू करेंगे। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आज से 3 to 6 ईयर्स के बाद में भी देखते हो, 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद में भी देखते हो, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, लंदन, जहां पर भी आप हो आपके लिए है। और ये जो वीडियो है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है, और मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। पहला रीडिंग करेंगे जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस हार्ट चॉइस करा था, और उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके पास से कौन वापस आ रहे हैं और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है और क्या रहेगा आगे में, क्या होने वाला है। जो आपको छोड़ के गए था और आपके साथ उनके लवर्स के रिलेशनशिप थे, और कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ के गए थे। लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द टावर, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेजेस ऑफ शोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक टाइम में जो था उनके साथ आपके बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप था, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में आती है।
आपके ये जो कनेक्शन है ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में है, आते हैं। और आपके साथ इनके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन था, तब भी जाके उन्होंने छोड़ के गए थे, क्योंकि नेचुरली कार्मिक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ऐसे चीजें होता रहता है। तो आपके जो कार्मिक सोलमेट क्या होता है कि पिछले बर्थ में आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पाउस होंगे, आपके कोई रिलेशनशिप रहेगा इनके साथ, और आपके बहुत ही ज्यादा गहरा कोई रिलेशनशिप रहेगी, और उसके बाद ये इंसान आपको, आप दोनों मिलके कुछ गलत काम कर देते हो, या आप इंडिविजुअली कुछ ऐसे कुछ करते हो जिसके वजह से ये आपके कार्मिक सोलमेट बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट बर्थ में जब मिलते हैं तब रिलेशनशिप तो बनते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप को शादी में बदलना या शादी होने के बाद उसे प्रॉपर सक्सेसफुल करना, वो बहुत टफ हो जाती है बिकॉज ऑफ दोज कार्मा इश्यूज। तो जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं होती है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, कोई थर्ड पार्टी आ जाते हैं तो कभी कुछ और हो जाते हैं, इस तरीका के होती है। और ये आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ही है आपके पर्सन, और डेफिनेटली ये आपको छोड़ के गया था, और अब भी जो है वो वापस भी आ रहे। और लेकिन अब वो कर्मा दोष है नहीं, आप दोनों के जो है कर्मा दोष कट गया है, जो भी कार्मिक दोष थे वो कट गया है। और अब भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आप दोनों के। और मुझे लगता है कि आप भी, आपको कोई भी चीज़ों के इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन between you two. Everything is going to be very fine between you two. So this person is your karmic soulmate connection. What is karmic soulmate connection? Probably you both were spouse in past life, or you both were soulmate or lover, or you used to love each other, and then you both have done something major, some major karmic problem where they are like between you two. You have created that, you have done something that karma has generated. You two have done together something that karma created by you, and because of that karma you always suffer in this birth, and until and unless this karma is balanced. So what you supposed to do in such situation, you have to do karmic cord cutting healing session, and it would go away slowly, gradually it would go, or it would get balance. And that is what happening over here. He or she was your karmic soulmate, and in past you both were in a relationship, but there were another person got into this relationship, they got involved, and after that he or she left you, and they left you and went, they were with a third party till now. And slowly, gradually, by September October month they will be coming back to you, and they will create a bonding with you, and then they will have relationship with you. Probably initially you will fight with them and you will ask them many questions and many things will happen, but slowly, gradually you will accept their offer. अभी तक तो इतना ही है, मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि मतलब बहुत कुछ होने वाला है, बट अभी तक दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप में बदल जाएंगे। मतलब आप उनके ऑफर भी एक्सेप्ट करोगे, वो सितंबर अक्टूबर तक वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और स्लोली ग्रेजुअली आप दोनों के रिलेशनशिप और बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके बाद आप उनके ऑफर भी एक्सेप्ट कर लोगे, और आप दोनों के एक चांस बन रहा है कि एंगेजमेंट हो या रोका हो जाए। लेकिन शादी का अभी तक मुझे नहीं दिखा है, तो मैं शादी का नहीं बोलूँगी, लेकिन चांसेस है कि आप दोनों साथ में रहना शुरू करो या ये आपको कमिटमेंट दे दे। वो होंगे नेक्स्ट ईयर मई तक, नेक्स्ट ईयर के मई तक वो चीज़ होंगे, और सितंबर अक्टूबर तक ये आपके लाइफ में वापस आ जाएगा और आके आपको एपोलॉजी करेगा। और अभी जो है ना, अभी उसको वो धीरे धीरे थर्ड पर्सन जिसके वजह से आपको छोड़ के गया था, उस थर्ड पर्सन को अपने लाइफ से निकल रहा है, और उस थर्ड पर्सन के लाइफ से निकल रहा है खुद भी, उस थर्ड पर्सन के लाइफ से निकलते निकलते हुए मैं देख रही हूँ कि इसको, ये खुद निकल रहा है उस थर्ड पर्सन के लाइफ से, स्लोली ग्रेजुअली निकल रहा है। और निकलेगा पूरी तरीके से, सितंबर अक्टूबर तक निकल जाएगा, और फिर आपके पास आते हुए और आपको अप्रोच करते हुए, और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल, जैसे कि रोका हो, एंगेजमेंट हो, उस तक लेके जाते हुए मैं देख पा रही हूँ। इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहे कि शादी हो जाएगी या कुछ इस तरीके से नहीं है।
तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नाम मेरे सामने आ रही थी, स्पिरिट मुझे कानों में बोल रहे थे, शिवानी या शिवांगी, एंड दीक्षा, एंड दिव्या, एंड रितु, एंड Mahesh, and Rakesh, and Rajesh, and Jitinder, and Jatin, and Pihu, and Pratiksha। इस तरीका के जो नेम्स है मेरे आंखों के सामने आ रहा था बार बार, और आंखों के सामने क्या बोलो, कान में मुझे बोला जा रहे थे। तो शायद ये इनमें से आप लोग हो या आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं जो वापस आ रही है। ये जो पार्टनर है आपके, ये काफी ज्यादा वेल सेटल्ड है, और जिस दिन वापस आके आपसे मुलाकात करेगा उस दिन वो ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, इस अटायर में आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। इस वक्त में मैं देख रही हूँ आप व्हाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, या ब्लू में कुछ पहने हो, या स्काई ब्लू में कुछ पहने हो, या पिंक या पीच या ब्राउन में कुछ पहन के रखे हो, या व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहन के रखे हो। इस तरीके से है। द फर्स्ट डे यू मेट दिस पर्सन, और उस दिन ये कुछ ग्रे या ब्राउन में पहना हुआ था, और आप कुछ व्हाइट या ब्लू में पहने हुए थे। ऐसे था आप दोनों की पहली मुलाकात। काफी ज्यादा आपने तकलीफ झेला है इनके साथ जब रिलेशनशिप था, लेकिन धीरे धीरे आपने उस चीजों को ओवरकम करके आगे मूव ऑन करा है। ये आपके ऊपर है, आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बट ये डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आ रहा है। आप, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में डेफिनेटली वापस आ रहे हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आपके एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी। एनर्जी है आपके 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MIRSGOKBC, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे या डेट ऑफ बर्थ मैच होगी। इस तरीके से आप लोगों को ना हेयर स्पा कराने की बहुत शौकीन हो आप लोग, आप हमेशा हेयर स्ट्रेटनिंग कराते रहते हो। कुछ लोग डॉक्टर हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो या मेडिकल फील्ड में हो, और कुछ लोग जो है कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, जैसे HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में अच्छे पोजीशन में काम करते हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, या फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हो जैसे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या खुद के बिजनेस करते हो। यही सारे काम आप करते हो। और ज्यादातर लोग मेडिकल फील्ड के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपको हॉर्स राइडिंग के शौकीन है, और कॉफी पीने की शौकीन हो, और रेड रोजेस आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और आपके फेवरेट कलर है व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, ब्लू जीन्स एंड व्हाइट टॉप, शायद ये पहनते हो बहुत ज्यादा, या ये आपके फेवरेट अटायर के अटायर है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और दूसरे रीडिंग में चलूंगी। जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट, ये रिलेशनशिप के मिराकलस ब्रेसलेट है, आप इसे जीत सकते हो। if you are focusing on this channel, you are supporting this channel, you see every videos and you comment on every videos, every single video के नीचे में comments करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको ये ब्रेसलेट जरूर मिल सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग के मिराकलस ब्रेसलेट होती है। मैं इसमें हर तरीका के हीलिंग देती हूँ और लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और अगर आपको ये पर्सनली चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो देखते हैं कि आपके पास से कौन आ रहे हैं, आपके लाइफ में कौन आ रही है आपके पास से, हु इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। This person who is coming from your past literally fought with you long back. They were, kind of fighting with you for everything, and they had ego issues, and they thought that you were good for nothing. Like they used to defame you or degrade you, that oh, I am so educated, oh, I am this, I am that, and I am like that.
That was their they used to do earlier. But now they have changed a lot, and this person is going to meet you half of the way. You have to also do something, and they will also do half of the things. Like they will be doing half things, and then this person is going to meet you, and they will approach you, and they will try their best this time to give change things. You can give them an option, like you can give them a chance. One chance is, I think you can give them one chance. Let me see. But if you ask me that will they give you commitment for marriage or something like that, I would say no, they are not going to do that for sure. Yes, you can give them one chance. They will they have changed, changed, and they are willing to give you. Initially they were not willing to give anything to you. They used to take and suck your energy, but now they are willing to give you whatever you are looking for, and they are willing to give you time. They are willing to do everything for you. This point of time, you are wearing currently, you are wearing some sky blue or light blue color shirt, t-shirt, dress, and top, brown or lavender and green. This colors shirt, t-shirt, dress, and top you are wearing. And definitely, when the first time when you met this person, he or she was wearing a red shirt, t-shirt, dress, and top, or red and black, and you were wearing peach and black or pink and black, something like that. They cheated you earlier, but at present they are not like that. They have changed. Some transformation happened in their life. They have changed, and they have changed a lot. And now they are actually they want you. पहले ना इन्होंने आपको चीट करा था, लेकिन इस वक्त में मैं देख रही हूँ कि ये चीटिंग के लिए नहीं सोच रहे, ये एक्चुअली बदल गया है। जी, जो भी इंसान आ रहे हैं इनके साथ आपके रिलेशनशिप पहले रह चुका है, और आप जो है आप काफ़ी ज़्यादा इनको सब कुछ करते थे, जैसे मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के सब कुछ करते रहते थे। लेकिन फिर आगे में ये इन्होंने कुछ नहीं क्या करा आपके लिए। आपकी एनर्जी कह रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, इस तरीका के काम करते हो, या सोशल वर्कर या पॉलिटिशियन, इस तरीका के काम कर रहे हो, या आप क्रिएटिव फील्ड से हो, जैसे सॉफ्टवेयर, फैशन डिजाइनर, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, या आप लोग हो शेफ, कुकिंग फील्ड, फूड क्वालिटी इंजीनियर, और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, इस तरीका के रैंक में भी हो सकते हो। और कुछ लोग जैसे पुलिस, आर्मी, इन सब में हो। मैं देख रही हूँ कि आप लोग इन सारे फील्ड में से हो, और डेफिनेटली मैं आप लोगों की अगर एनर्जी देखूँ, तो पहले आप लोगों के साथ इनके काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे इनके साथ, आप पिंक या पीच के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन में कुछ पहने थे, और ये रेड या मरून के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन में कुछ पहन के आया था आपसे मिलने के लिए, फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी। इस वक़्त में आप ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या स्काई ब्लू के या लाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन में, या लैवेंडर या ब्राउन में कुछ पहने हो, इस वक़्त में जब रीडिंग चल रही है। और आपको ना आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड सर्कल है। आपके फ्रेंड सर्कल विद गॉड ग्रेस लोगों के होता नहीं है। लोग मतलब जेलसी करते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। और ये जो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, आप देने के लिए आ रहे हैं। पहले आप ज़्यादा इसे देते थे, ये रिसीव करता रहता था, ये आपके लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन इस वक़्त में वो वापस आ रहे हैं आपको देने के लिए, और अच्छे से वापस आ रहे हैं कि आपको सब कुछ देंगे, और आपके साथ एक रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस तरीका के होप लेके आपके पास वापस आ रहे हैं, और आप
आपके लिए करेगा भी। ट्रैवल ट्रैवल करना आपको भी पसंद है, आपके पार्टनर को भी पसंद है, और डांस करना दोनों को पसंद है, डांस या सिंगिंग दोनों को पसंद है, और आप लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हो, या पहले भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हिल स्टेशन जा चुके हो, तो बहुत अच्छा है। और आपको बोला जा रहा है एक कोई साइकिक या हीलर के एक्सपर्टीज नॉलेज के आप हेल्प लो, तो डेफिनेटली आपको एक हेल्प चाहिए, सीक एन एक्सपर्ट करके बोला जा रहा है, तो आप जरूर एक कोई हीलर, साइकिक या टैरो रीडर जिन्हें भी आप मानते हो या एस्ट्रोलॉजर के, आप जरूर एक्सपर्टीज के हेल्प लो, ताकि ये जब पर्सन वापस आए तो आपके क्या डिसीजन रहेगा उस मैटर में लो। बट ये जो है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगी। इस वक्त में मुझे ये नहीं दिखता है कि इसके साथ आपकी शादी हो जाएंगे, इस तरीका से नहीं दिख रहा है, लेकिन रिलेशनशिप आपकी सक्सेसफुल रहेगी। इसी के साथ ही रीडिंग कंप्लीट करूंगी, आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि एनर्जी क्या है। 4, 22, 31 and 13, 7, 25 and 16, 9, 18 and 27, 8, 26 and 17, 2, 20, 11 and 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते की, के, डी, ए, सी, एम, जी, ओ, आर, टी, यू, एन, इनमें से फर्स्ट ईयर, एन, एस, इनमें से फर्स्ट ईयर, पी, इनमें से फर्स्ट ईयर लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि जो जो मैच केयर करा है, आपके बारे में थोड़ा और जानेंगे, और इसी के साथ जो है ताकि एनर्जी आपको पता चले कि आप ही के बारे में बात हो रही है, और फिर इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक करना मत भूले, और वीडियो के नीचे में लगातार लिखना मत भूले, ताकि आपको ये रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मैच्योरिटी के साथ लेते हो चीज़ें, बहुत पेशेंस रखते हो, और कभी भी चैलेंजेस आते हैं तो बहुत पेशेंस लेके चलते हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और आपको एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर और टैरो कार्ड रीडर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपके पार्टनर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनके एक डिफरेंट एनर्जी है, वो हमेशा सेपरेशन के पहले सोचता है कि सेपरेट करके चला जाओ, सेपरेट करके हो जाओ। इनके ईगो इश्यूज पहले भी था, जब आप दोनों सेपरेट हुए थे, इसलिए नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आया था, इसलिए क्योंकि इनके ईगो इश्यूज हमेशा काम करते थे। आप दोनों के एक लड़ाई हुआ और फिर ये छोड़ के गए, छोड़ने के बाद इन्होंने इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था जिसके साथ उनके कोई बॉन्डिंग नहीं बना, तो बना नहीं, तो इसीलिए आपके पास आ गए वापस। तो लेकिन आप ना बहुत ज्यादा पेशेंसफुली चीजें लेते हो, आप हमेशा हर चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करते हो, आपके ऊपर अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर जो है वो इतना मैच्योरिटी पेशेंस के साथ काम नहीं ले पाते, वो बहुत ज्यादा जल्दी फ्रीक आउट कर जाते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी बोलते हो तो उनको बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम है, फटक से अपने ऊपर ले लेता है, तो ये चीज आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके बड़ा नहीं करूंगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहे चैनल, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में लिखना मत भूले, क्योंकि आपको फ्री ब्रेसलेट या फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।